Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, start the class. आपके सिलेबस में दो तीन चीजें लिखी हुई हैं regarding the introduction of HRM. The first one was the introduction part of, switch on your cameras. The first part was the introduction part of HRM. I think we did it yesterday. And I think in a proper way, your classes will resume after Holi only because no one is in the class today. Even the introduction part was something I wanted to tell you in the class because it is always offline is always better than online. But anyways, so introduction you all understood? Yes, ma'am. Ma'am, but notes? What? Notes, ma'am? Notes? Yes, ma'am. You want notes from me? Yes, ma'am. Okay. Let me tell you one thing. I will teach you each subject in an elaborate form in the class. Okay? I will make you jot down the important points of every topic. I will elaborate you, will make the class more interactive, but PDF giving is something I do not appreciate much. Okay? You have to go back and read the book. That is how it is supposed to be in class. You have to be in the class, you have to understand the concept. I'll give you the important points regarding the concept so that when you revise it, you can remember it quickly. But PDF giving is something I really do not appreciate. That is the utmost level of spoon feeding. That is why. Okay? Yes, You'll have no problem. Yes, no, because we have not provided the book. That's why I asked about the notes. It's okay. No issues. I told you ना, I'll elaborate it properly in class. So see, you are graduate student ना, ये online की वजह से क्या हुआ है कि आप लोगों को ये system ऐसा बन गया कि you know the system is such. The system is such that आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये need of the moment हो गया कि आपको material provide किया जाए. Otherwise, graduate students are supposed to come in the class with their notebook and pen. Okay, the teachers are supposed to give you the lectures and you need to write down, go back and study it. Right? It's wrong practice. Getting notes and all. And now when you are in the class from April, it will be offline, right? Yes. Do the same. In case I feel that there is some topic, otherwise see when you get that module, no, it is very comprehensive. So you don't need to study anything apart from that or refer to any book other than that. But if I feel or if you feel there is something you cannot do it yourself, I'm always there for you. Don't worry for that. Okay. So just carrying forward, this class will also keep as a revision. Okay, and with few new topics like personnel management is also there in your syllabus. What is HRM? Good morning, ma'am. What is human resource management? This is your subject, right? Yes. Rishi, I'll send you out. Yes, I'll ma'am. remove you from the class. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. One time I put you in waiting room. You entered again and you started doing the same thing. Okay. So last class में थोड़ा बहुत HRM का introduction हुआ था, little bit about the introduction part of HRM. So would somebody like to brief it? Rishi, you tell me, what is HRM? Can you hear me, Rishi? Or you are so busy talking that you can't even hear me?
यस मैम। HRM क्या होता है? आप तो क्लास में थे कल। मैम HR Rishi, you are in class. Even if you are doing an online class, you have to maintain the discipline of the same, right? नो मैम मेरा फोन और मैम मतलब मेरा रूम पार्टनर मैम दोनों एक ही साथ मैम क्लास कर रहे हैं, इसलिए दोनों का आवाज मैम वो अति हो रहा है, इसीलिए इको हो रहा है। ठीक है, हो गया, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सेटल हो गया। अब बताओ HRM क्या होता है? मैम एचआरएम में मैम नॉर्मली मैम उस दिन बताए थे कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैम, इसमें हम रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन के रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कंपनी का कंपनी में मैम एज ए लेबर जो होता है वो भी मैम एक रिसोर्स ही होता है कंपनी के लिए। और मैम जितना वो स्किलेबल होगा उतना ज्यादा हमारा मैम ऑर्गेनाइजेशन मैम आगे की तरफ मतलब मूव करेगा, ग्रोथ करेगा। Anyone would like to brief what is HRM? What is human Yes, resource ma'am. management? Yes, please tell me. Yes, ma'am. Human resource management. In this, we manage the human resource, and human resource is an active part, is an active factors of production, which is responsible for using machinery, technology in the organization. Which is responsible for driving the other factors of production. Okay. Yes, ma'am. Now, when you define human resource management, ये तो ठीक है, तुमको समझाने के लिए हम बताएं, लेकिन जब आप human resource management को define करते हैं, तो how do you define human resource management? See, it is the process of, you know that there are different HR activities. Yes, Pratyay? बोलो। मैम इसको डिफाइन कर सकते हैं मैम, जैसे बताओ। ह्यूमन रिसोर्स इज a strategic approach to the effective and efficient management of the people in a company or organization मैम। इसको मैम पहले मैम लिखे हुए थे मैम सेकंड सेमेस्टर में। और मैम ये मैम उस दिन आप बताए थे कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेनिंग के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए या फिर डिजाइन के लिए। यही हम पूछने वाले थे तुम लोग से अभी। देखो, HR समझने के पहले ना ये एक दो इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखो। Who raised hand? थोड़ा सा नहीं, इट्स ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू, किसी और ने भी हैंड रेज किया था। HR पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का क्लास रखो। ऐसे तो तुम लोग को बहुत पेरोल और वर्कशॉप में बता चुके हैं, पर फिर भी ये तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है तो अभी फ्रेश स्टार्ट करते हैं। HR की क्या क्या एक्टिविटीज होती है जो जो तुम लोग जानते हो? अनम्यूट करो, बताते जाओ एक एक, क्या क्या करता है? मैम रिक्रूटिंग, हायरिंग, मैनेजिंग एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ठीक है। और रिवार्ड देता है मैम, रिवॉर्ड एप्रिसिएशन, गुड। और मैम सिक्योरिटी, कंपनसेशन, ठीक है, सेफ्टी मैम, सेफ्टी। और इंडस्ट्री और रिलेशनशिप बनाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी गुड। सारा एक्टिविटीज तो आप लोग को लगभग मालूम है। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, performance evaluation is the same thing of as performance appraisal. And किसी ने R&D बोला, रिसर्च भी है, बनाता है मैम। वेरी गुड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करता है, बहुत अच्छी बात है। मैम लेबर रिलेशन को भी मेंटेन करता है। That is again a point that comes under industrial relation. Okay, broad aspect में जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ोगे तो उसमें ये भी पढ़ोगे, ठीक है, ये आपको मालूम है। और कुछ बोलना चाहिए? Developing strategies to retain employees. Very good, retaining employees. पेरोल में बनाता है, पेरोल बनाता है, बहुत बढ़िया। मैम एम्प्लॉय का टर्नओवर भी तो यही कराते हैं। टर्नओवर रोकते हैं, you know what is turnover? है ना? Yes मैम। हाँ, employees who are leaving the organization in a particular period of time is known as employees turnover. Okay? Okay. जब आप HRM की बात करते हैं, पहले HRM समझो, फिर तुम्हारे सिलेबस में एक टॉपिक है पर्सनल मैनेजमेंट, और इन दोनों का डिफरेंस है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए पहले HRM समझिए। See, human resource management is the process of procuring, developing, maintaining and controlling of human resources. Last class में enough
आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आ गया था? See, given the same set of resources when you have in the organization, जिस भी organization का intellectual capital किसी और organization से better होगा, intellectual capital money in the sense of skills, knowledge, abilities, ये चीजें अगर तुम्हारी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से बेटर है तो you will be able to do better for your organization. This organization is supposed to be more productive than the other organization whose intellectual capital is less skilled. Understood? Yes, ma'am. अब आते हैं हम लोग कि HRM क्या होता है. अब थोड़ा थोड़ा फॉर्मल शेप देना शुरू करो कि HR का क्या काम होता है. ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कल हम बताए थे तुमको कि ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट किसी और चीज के जैसे मटेरियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट से डिफरेंट क्यों होता है? व्हाई डू वी गिव इट अ डिफरेंट शेप? और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब हम कह रहे हैं तो इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ HR डिपार्टमेंट के लोग नहीं है. The person who's working in marketing is also human resource. One who's working in warehouse is also human resource. Everyone who's working in the respective different departments of the organization is the human resource, right? क्या डिफरेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट में और बाकी मैनेजमेंट में? क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचो तो. घर में सिर्फ 10 लोग होते हैं तो 10 लोग, कोई बात अगर होती है, कोई मैटर अगर सीरियस होता है या जिस पे डिस्कशन योग्य जो मैटर होता है, यू नो समथिंग व्हिच नीड्स कंटेम्पलेशन और डिस्कशन ओवर द मैटर, आपको नहीं लगता है कि इसका मूड समझ के बोलो, ठीक है, थोड़ा मौका देख के बोलो, उस पे भी रिएक्शन किसका क्या आएगा ये अनसर्टेन होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? Yes, ma'am. This is since it is very peculiar about human that you behave differently to the same situation. Same organization में कुछ हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई पॉलिसी आई, कोई नया प्रोग्राम आया, किसी तरीके का गिरवांस आया लोगों का, on the same thing different human can behave differently. Okay, this is the speciality about human resource management, that it is not easy to manage emotions, it is not easy to manage attitude, it is not easy to get along the personality of different people who are working in the organization. Understood? क्योंकि इस चीज से बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है. आपने कंपनी की पॉलिसी के तहत किसी लेबर को निकाल दिया, अब लोगों ने उसको अलग तरीके से परसीव किया, एंड नाउ दे मेड अ यूनियन एंड दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक. ये इतनी बड़ी बात हो गई. So this is what makes human resource management different from the other managements. Now, coming to now we will start giving formal shape to human resource management. What is human resource management? Human resource management is the process of procuring. मैम लिखना है. तुम लोग जब क्लास में आना तब हम लिखवा देंगे, ठीक है? हम ये लिखवा देंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से और फॉर्मल क्लास में करेंगे. अभी सिर्फ लेक्चर सुन लो, ठीक है? When you come in the class after Holi, you people are coming, right? Yes. No, ma'am. I think most of you are coming after Holi. Chalo. Human resource management is the process of procuring, developing, maintaining and control of human resources. इसी एक स्टेटमेंट में, इसी एक डेफिनेशन में पूरा ह्यूमन रिसोर्स आ गया.
द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर करने का मतलब, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड करो, डाइसेक्ट करो इसके डेफिनेशन को और धीरे धीरे समझो कि क्या प्रोसेस है। शुरू से अंत तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता रहता है, राइट फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ दैट पर्सन, जब से आप उस पर्सन को हायर करते हैं तब से, और जब तक वो सेपरेट करता है। सेपरेशन प्रोसेस माने रिजाइन कर दिया, सेपरेट Yes, कैसे ma'am. कैसे रिजाइन, कैसे कैसे सेपरेट होते हो, which are all the processes that you use while separating from the organization? Ma'am, resignation, death, turnover. Okay, ठीक है, ये सारी चीजें, any process that will make you separate from the organization will be considered under separation. Now स्टार्ट से लेकर के एंड तक, जब तक आप सेपरेट नहीं हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कीप्स ऑन फंक्शनिंग. So we will dissect this. We'll dissect this statement that we just wrote about human resource management. The definition: the act of procurement, procuring. How do you think is procurement important? Is the act of procuring? Procurement मतलब To obtain something. to obtain something. Okay, so it is just the similar thing when you talk in reference of human resource also. Procurement of human resources यानी कि आप उसको लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस किस प्रोसेस से होता है प्रोक्योरमेंट? मैम कैंपस प्लेसमेंट. हाँ, सब कुछ मिला जुला के रिक्रूटमेंट से होता है, राइट? यस मैम. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मैन पावर प्लानिंग, ये सब प्रोक्योरमेंट में आएगा. ये सब तुम लोग को पढ़ना है एक एक करके. तुम लोगों का सिलेबस फास्ट है, HRM का लगभग सब कुछ दिया ही हुआ है. आई वाज गोइंग थ्रू योर सिलेबस, इट इज अ वास्ट सिलेबस. पूरा अच्छे से HR आप लोग को पढ़ना है. तो जो लोग BBA में अच्छे से HR पढ़ेंगे, अगर MBA में HR लेना है तो इट विल बिल्ड, आई थिंक 90% ऑफ द जॉब इज डन. ओके, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो. रिक्रूटमेंट आएगा इसमें, सिलेक्शन आएगा इसमें, जॉब एनालिसिस आएगी इसमें, procurement. Why is procurement important to the organization? रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आप लोग चाहिए तो थोड़ा सा पेरोल ध्यान में रख सकते हैं, क्लास तो करते नहीं थे उस पर. मैम मैक्सिमम आउटपुट के लिए मैम रिक्रूटमेंट जरूरी है मैम, क्योंकि to find best candidate for the organization. Basic activity क्या मैम? बोलो प्रशांत. Basic activity मैम. Basic activity. Yes मैम. No, it is not that basic also. It is a very strategic activity. Why I say this? Because recruitment and selection makes sure that your organization, recruitment, selection, manpower planning, ये सब अलग अलग एक चैप्टर है. अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बस जान रहे हैं. मैनपावर प्लानिंग का मतलब होता है टू फाइंड द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम. दिस इज मैनपावर प्लानिंग. मैनपावर प्लानिंग का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है और ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है. बहुत सारा इकोनॉमिक्स का मॉडल वगैरह लगता है ये तय करने के लिए कि कितने लोगों की जरूरत कब होगी. ओके, सो manpower planning, recruitment and selection, these are all something that facilitates procurement. Why is recruitment, selection or manpower planning important to the organization? देखो, you have to find the best candidate for your job. Okay, you have to match the skill set with the kind of job that you require. तुमको ऑपरेटर का जॉब है मान लो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑपरेटर की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में और तुमने उसमें MBA वालों की हायरिंग कर ली, करेगा वो जॉब ऑपरेटर का? नो. और गलती से मान लो किसी मजबूरी के तहत वो कर भी ले तो वो रहेगा वहां पर? नो मैम. नहीं रहेगा. नेक्स्ट थिंग, इफ यू नीड अ स्किलफुल जॉब, you need an analytical job, you have an analytical job in your organization,
और उसके लिए आप रिक्विजाइट डिग्री एक प्लेन ग्रेजुएट को दे रहे हैं जिसने कि कभी कोई खास एनालिसिस नहीं की, उस तरीके की पढ़ाई नहीं की, will you be able to carry on that job in the organization properly? No, ma'am. No. That is why matching the right candidate with the right job. आप जब बीबीए करके जाएंगे आप देखिएगा कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जब एग्जाम होता है पीएसयूज का, जितने भी पीएसयूज है, कोल इंडिया लिमिटेड है, नवरत्न है, नवेली लिग्नाइट है, सेल है, ओएनजीसी है, जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट आता है असिस्टेंट मैनेजर का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग को देता है, सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीए है। ठीक है, एमबीए है क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड जॉब है। अंडरस्टूड? वो स्पेशलाइज्ड जॉब है तो उसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीए मांगा जाएगा। अब एमबीए जो भी स्पेसिफाइड हो, जैसे मार्केटिंग के लोग चाहिए तो एमबीए मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होना चाहिए तुम्हारा, एमबीए एचआर है तो एमबीए एचआर होना चाहिए तुम्हारा। सो दिस वे द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स श्योर दैट टू डू अ पर्टिकुलर जॉब दे आर हायरिंग द suitable candidate for it। ये जो इतने लोगों को अलाउ किया जाता है फॉर्म भरने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे भी कर सकती है कि भाई अब हम मेरे पास 8 ही सीट है, कितनी सीट्स आती है इनमें, 10, 12, 50, इससे ज्यादा तो नहीं, तो 50 सीट है तो फिर भी अप्रोक्सीमेटली अगर 250-300 कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दे फॉर्म लेना। लेकिन ऐसा करती है क्या? एक लास्ट डेट दिया जाता है, till that last day anyone who has the suitable eligibility can fill that form। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। Yes, ma'am. क्यों किया Yes, ma'am. जाता है ये? To let people apply for that job and then they select the best out of it। तुम सोच लो कि रिक्रूटमेंट एंड जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब बैंक का जोनल हेड होता है जो कि एक्सक्लूसिवली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का हेड होता है। मतलब एचआर में सिर्फ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देखता है, बाकी कुछ नहीं। और ये खुद में इतना स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है, इतना टेक्निकल काम है कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज द वर्क ऑफ एचआर। प्रोक्योरमेंट पार्ट समझ में आया? You're bringing in the right candidate, you're bringing in the most suitable candidate for your job. Understood? Now when you have taken the people in your organization, एक बार जब आपने प्रोक्योरमेंट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रकाश सिंह, यस प्रकाश, प्रत्यय, अच्छा प्रत्यय रेज हैंड, हाँ बोलो। मैम तो फिर रिक्रूटमेंट और प्रोक्रूटमेंट में अंतर क्या है? रिक्रूटमेंट में तो यही ना कहता है मैम, सिलेक्शन के बाद जो लोग भी सही है या फिर तो उनको ही लिया जाता है, मतलब जो जिस काम के लिए है। प्रोक्योरमेंट का तो मतलब होता है किसी चीज को लाना। अब इस प्रोक्योरमेंट हेडिंग में तुम ये सब पढ़ोगे एक्टिविटीज जैसे एमपीपी, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, ये सब अलग अलग बड़ा बड़ा टॉपिक है। अभी हम तुमको बस बता देते हैं। जैसे मैन पावर प्लानिंग क्यों करते हो? तुम क्या प्लान करते हो? तुम एग्जाम देने जाते हो तो प्लान करते हो ना कि ये चैप्टर है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी इससे पूछा जाएगा। अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो कुछ वैसा जिसकी कम प्रोबेबिलिटी है उसको छोड़ देते हैं आप लोग। ये एक तरीके की प्लानिंग होती है, किया जाता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ये भी प्लानिंग करती है। देखो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, साल भर लग जाता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करने में। जैसे पीएसयू भी लेता है कम से कम 7-8 महीना तो लगता ही लगता है, और बहुत खर्च होता है इस पे ऑर्गेनाइजेशन का। इट्स अ कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आज रिक्रूटमेंट कर लें और महीने बाद अगर किसी ने छोड़ दी नौकरी तो हम फिर से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करेंगे। Organizations cannot afford to make that much effort in terms of both cost and time। ठीक है, इसीलिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बहुत टेक्निकली किया जाता है। और मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है? मॉडल होता है, मॉडल बनाया जाता है, इकोनोमेट्रिक मार्कोव्स मॉडल ये सब है। उससे ये डिसाइड होता है कि जैसे मान लो कि 2022 चल रहा है, अभी 2022 में इतने लोग हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं मान लो। अब यही जूनियर एग्जीक्यूटिव्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो 2000 मान लो कि 28 तक कितने लोग रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में? कितने लोगों की पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे?
जब आप नीचे होते हैं तो सबसे ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी नीचे होती है ना। सीईओ का पोजीशन होता है क्या 20-25? नो नहीं होता है। मैनेजमेंट ट्रेनी का होता है। सीईओ का तो एक ही होगा, डायरेक्टर का तो 2 ही 3 होगा। तो वैसे में अगर कोई छोड़ देता है, किसी का डेथ हो जाता है, उस तरीके की प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन पहले से करके रखता है कि अगर कुछ हो जाए बीच में तो वी डू नॉट रन शॉर्ट ऑफ मैन पावर। समझे? तो ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है मैन पावर प्लानिंग करते समय। मॉडल है, लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला है, उससे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है कि आज इतने और एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर कितने ऑर्गेनाइजेशन में परसेंटेज निकाल के देखा जाता है कि 5% से ज्यादा है तो वो अलार्मिंग है, अगले किसी ईयर में कितने लोग होंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बताते जाएंगे। प्रोक्योरमेंट पार्ट समझ में आया सबको? यस मैम। अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपिंग पार्ट की तरफ। प्रोक्योरमेंट एंड देन डेवलपमेंट। आपने लोगों को हायर तो कर लिया, यू हैव हायर्ड द पीपल, ठीक है, रिक्रूट कर लिया एंड यू हैव सिलेक्टेड देम। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। हम तुम्हारे सिलेबस में जिस तरीके से दिया हुआ है ना, उसको हम थोड़ा सा रीशफल करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, कि पहले वैसे टॉपिक्स पढ़ाया जाए जो बाकी टॉपिक्स का बेस है। अब हम तुमको वेलफेयर पहले पढ़ा दें और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बाद में पढ़ाएंगे, या जॉब सेटिस्फैक्शन पहले पढ़ा दें और रिक्रूटमेंट बाद में पढ़ाएंगे, तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। ओके, सो आई एट द एंड ऑफ द डे क्या है, पर्पस ये है कि तुम्हारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, राइट? सो आई विल रीशफल few topics as per your ease of understanding. बेसिक्स जितना है एचआर का बिल्ड करना वो हम पहले बताएंगे तुम लोग को, और कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो, रिकॉल कर लोगे। ओके, now you are done with the recruitment part, you are done with the selection part, you are done with procurement part. जैसे एम्प्लॉइज आते हैं आप उनको वैसे ही काम पे लगा देते हैं क्या? ट्रेनिंग देते हैं, राइट? क्योंकि the employee is new to training, new to the organization, right? And the employee will be very chaotic about work if you do not give them proper training, right? तो आप सोच सकते हैं कि ये उनके डेवलपमेंट पार्ट में आता है, that now when you have hired the people, you are trying to develop them to make them more suitable and confident for work. अब इसमें ट्रेनिंग आती है, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है। जैसे एक ही साल की बात नहीं है, जब आप जानेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल भी है तुम्हारा एक टॉपिक जो कि इलैबोरेट वे में तुमको पढ़ना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आपने पास्ट में कितना काम किया, अब इंडस्ट्री ये भी देख रही है कि तुम्हारा फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितना है ऑर्गेनाइजेशन, तुम फ्यूचर के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जिससे हम फ्यूचर में तुमको कोई किसी कॉम्पिटिटिव टास्क में डाल सकते हैं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक जो टेक अवे होता है वो ये भी होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर कोई एम्प्लॉय लैग कर रहा है तो इन अ गुड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन द मैनेजर्स कॉल देम एंड फील्स कि क्या इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, क्या इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या इसको ट्रेनिंग के थ्रू इसके प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है, और इज देयर एनी अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पर्सन, ओके, दैट कैन बी ओवरकम, क्योंकि हर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। ओके, सो डेवलपमेंट पार्ट में आता है जैसे ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और आप अदर तरीके से भी उसको डेवलप कर सकते हैं, बाद में और बताएंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया डेवलप करना एम्प्लॉय को? यस मैम। बाकी लोग जो कैमरा ऑफ किए हुए हैं, आप लोग आई होप कि सुन रहे हैं। यस मैम। यस मैम। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि डेवलप करना किसको कहते हैं?
थोड़ा बहुत अभी समझते रहो, अभी पैनिक नहीं करने का है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं या कुछ नहीं। ये बहुत सरप्राइजिंग बात सब्जेक्ट के बारे में ये भी होती है कि पहला चैप्टर सबसे ज्यादा तब समझ में आता है जब आप आखिरी पढ़ चुके होते हैं, तब समझ में आता है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में बहुत स्ट्रगल होता है ना, क्योंकि तुम बस स्टार्ट कर रहे होते हो, लेकिन बाय द टाइम यू फिनिशिंग योर सिलेबस द फर्स्ट चैप्टर इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड ओनली देन। तो लोड नहीं लेने का, और क्लास में इनफ रिविजन होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, सब याद हो जाएगा क्लास में। दिस इज द डेवलपमेंट पार्ट। पहला प्रोक्योरमेंट पार्ट आपने समझा, दूसरा डेवलपमेंट पार्ट आपने समझा। तीसरी चीज, एम्प्लॉय को डेवलप कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय डेवलप हो गया, ट्रेन हो गया, अच्छे से काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये बताओ कि जो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, तुम्हारा प्रोक्योरमेंट हुआ, फिर तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ, तुमको ट्रेनिंग दी गई, तुम्हारा अदर परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, सैलरी बढ़ी या जो भी हुआ, क्या तुम बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का नहीं सोचोगे? सोचोगे? सोचेंगे मैम। और ये यस मैम, हो सकता है। और ये सिर्फ बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ, अगर तुमको वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं लगती है, वहाँ की पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती है, वहाँ का मैनेजमेंट कोऑपरेटिव नहीं लग रहा है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छा नहीं लग रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा हेल्थ किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से खराब हो रहा है, एक्सेस वर्किंग आवर है, 10 आवर्स वर्किंग, 11 आवर्स वर्किंग ऐसे है, और तुमको ये फील हो रहा है कि तुम्हारा हेल्थ डिटीरिएट कर रहा है वहाँ काम होने की वजह से, तुम किसी ऐसे जॉब में हो, मान लो फैक्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर्स होते हैं, लड़कियां भी लेती हैं वो डोमेन, लड़के भी लेते हैं। अब सेफ्टी इंजीनियर तो तुम बन गए हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा अच्छे तरीके से सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो करे। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन करती है, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि सेफ्टी इश्यूज है, तो क्या तुम नहीं छोड़ोगे उस ऑर्गेनाइजेशन को? छोड़ोगे? यस मैम। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट माने जैसे लेबर टर्नओवर अभी हम लोग डिस्कस किए, एक लिमिट के बाद अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में बार बार लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। एनी गुड ऑर्गेनाइजेशन, आई रिपीट, गुड ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज ट्राई टू रिटेन इट्स एम्प्लॉयज, उनको रखने की कोशिश करेंगे ताकि वो छोड़ के ना जाए। बहुत लॉस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जब उसके एम्प्लॉयज ज्यादा नंबर्स में ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं। किस सेंस में किस तरीके का लॉस होगा बताओ जरा। मैम उसको बार बार मैम अलग नया नया एम्प्लॉयज को लाना पड़ेगा, जिसके कारण मैम उसका मतलब जैसे फ्रेशर्स को अगर लाया तो मैम उसके पीछे फिर उसके स्किल को डेवलप करने के लिए उसको फिर से उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब उसमें वेरी गुड, ऋषि ने एक पॉइंट बताया। इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? यस मैम, टाइम और कॉस्ट भी इंकर होगा। टाइम और कॉस्ट भी जाता है। दूसरी बात, रिक्रूटमेंट का कॉस्ट क्या तुम्हारा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, टू एन एक्सटेंट बोल सकते हैं, लेकिन वेस्टेज से भी ज्यादा देखो, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट का कॉस्ट क्या? तुमने उसको लाया, उसके ट्रेनिंग के ऊपर बहुत खर्च किया, ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या? ठीक है। दूसरी बात, ये तो टेंजिबल लॉस है जो तुमको सामने से दिख रहा है। उसके बाद तुम उसके बदले जो फ्रेशर को लेकर के आओगे, नए एम्प्लॉय को, उसको सेटल होने में टाइम लगता है, वो काफी टाइम के बाद अपने फुल पोटेंशियल से डिलीवरी देगा काम की। दूसरी चीज, जब तक वो पूरी तरीके से सेट नहीं होगा तो उसको जो पैसा दिया जाता है दैट इज इन एक्सेस ऑफ द स्किल्स डिलीवर्ड। इसके अलावा एक इंटेंजिबल लॉस भी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं ना, तो दूसरे लोग जो वहां पर काम कर रहे होते हैं उनकी साइकोलॉजी पे भी बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, दे फील डीमोटिवेटेड अप टू एन एक्सटेंट। एक एक्सटेंट तक लेबर टर्नओवर इज ओके। क्यों ओके है वो भी हम बताएंगे, क्लास में आओगे तब ठीक से बताएंगे। ये फेस टू फेस बहुत सारी चीजें डिस्कस करने से ज्यादा ठीक से समझ में आता है। up to an extent like up to 5%, 5% तक ये सजेस्ट किया जाता है कि if there is labor turnover it is fine।
लेकिन अगर इससे ज्यादा है लेबर टर्नओवर, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस फैक्ट. Coming back to our topic, what we were discussing, maintenance of employees, procurement, developing, then maintenance. Maintaining में इसी एम्प्लॉय रिटेंशन पे काम होता है और एम्प्लॉयज को हैप्पी रखने की कोशिश की जाती है. There are a lot of measures which are undertaken by the organization to maintain the organization, maintain the people, कि वो वहां टिक के रहें. इसमें क्या क्या आता है? गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉय का वेलफेयर और हेल्थ, सेफ्टी, ये सारी चीजें के ऊपर जब ध्यान दिया जाता है, कॉम्पेंसेशन, ओके, तो इन चीजों पे जब ध्यान दिया जाता है, एम्प्लॉयज have been seen to have a tendency to be maintained properly in the organization. Okay. Next topic is control. Now, enough about employees, right? We are always talking about the employees. They should get this, they should get that. But you know, there are this is also a rule that if you are not guided by rules and regulations, you tend to start taking liberty out of it. So control के process में HR का audit आता है. Okay, HR auditing, HRIS is a software, human resource information system. ये सारी चीजें भी HR को कंट्रोल करने में, यानी ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करने के टर्म्स में बोली जाती है. अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? Yes. One moment. Yes, ma'am. आज बोलो. होली की तो छुट्टी कल से है. 18th, 19th and 20th is the holiday. 20th classes will resume. 1 minute I'll take that. Okay. Yes, ma'am. Happy Holi, everyone. Enjoy your Holi. Happy Holi, ma'am. Happy Holi, ma'am. Happy Holi, ma'am.